Welcome my dear students to our online class. Today we are going to start from processing unit. The processing unit contains the CPU, means central processing unit, and other electronic components that help the CPU to process the input according to the program and generate output. You can see two types of CPU on your screen. One is vertical CPU box and second one is horizontal CPU box. The CPU of computer is a small chip made of silicon. It is also known as the microprocessor. CPU box के अंदर जो ओरिजिनल जो CPU होता है वो एक स्मॉल चिप होती है जो सिलिकॉन से बनी हुई होती है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. All the electronic circuits of the computer are fixed on this small chip. The CPU is called the brain of the computer. It controls the entire working of the computer. CPU होता है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसीलिए CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं. It processes the output with the help of program and gives the output. On receiving the data and instructions from the input device, the CPU decides what to do, how to do it, and which unit will do it, and accordingly it sends messages or signals to those units. जैसे ही हमारा एंटर किया हुआ डेटा CPU को मिलता है, वो डिसाइड करता है कि ये डेटा के ऊपर प्रोसेस कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा. फिर वो जो यूनिट उसको प्रोसेस करने वाला होता है उसको वो कमांड देता है. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, द CPU generates information and displays it through the output unit. The CPU consists of three components. One is control unit, means CU, arithmetic and logical unit, means ALU, and third is memory. So, our first point is control unit. The control unit controls and coordinates the movement of data and manages processing. It receives the input, transfers it to the ALU and obtains the result from the ALU. कंट्रोल यूनिट डेटा को रिसीव करता है, फिर वो ALU को डेटा ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से जो रिज़ल्ट उसका बनता है उसको वो फिर से अपने पास लेता है. The CU also controls the storage of data in the memory. Second point is arithmetic and logic unit, means ALU. All the arithmetic and logic operations are done by the ALU. The control unit first gets information from the memory and then transfer it to the ALU to perform operations. कंट्रोल यूनिट जो होता है वो पहले इन्फॉर्मेशन को मेमोरी के पास से लेता है, फिर वो ट्रांसफ़र करता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को और उसके ऊपर ALU जो होता है वो अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. द ALU परफॉर्म्स द ऑपरेशंस एंड सेंड्स द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी. एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट उसके ऊपर ऑपरेशन करके वो डेटा जो बनता है वो फिर से मेमोरी को वो ट्रांसफ़र कर देता है. थर्ड पॉइंट इज मेमोरी. द मेमोरी रिसीव्स डेटा फ्रॉम द CU एंड स्टोर्स इट. मेमोरी यूनिट डेटा को रिसीव करता है और अपने अंदर वो स्टोर करता है. The CU then sends this data to the ALU for processing and producing the output. फिर कंट्रोल यूनिट वही डेटा को ALU को ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पर उसका आउटपुट बनता है. तो वो आउटपुट दो तरह के हो सकते हैं, या तो
एक सॉफ्ट आउटपुट होता है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और दूसरा आउटपुट जो होता है वो प्रिंटर के ऊपर जाता है और वहाँ से वो डेटा हमको ऑन पेपर प्रिंट किया हुआ मिलता है। The CU collects this output and sends it to the memory for storage। फिर कंट्रोल यूनिट वो डेटा को कलेक्ट करके जो आउटपुट मिलता है उसको वो मेमोरी यूनिट को अपने अंदर सेव करने के लिए भेज देता है। The CU then instructs the memory to send the output to the output devices। As you already know, a computer can store a large amount of data in its memory। All the programs and data are stored in the computer's memory। There are two kinds of computer memory. One is primary memory and second one is secondary memory। First we understand primary memory। It is also known as the main memory। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। प्राइमरी मेमोरी में बहुत बड़ी संख्या में सेल्स होते हैं जहां पर वो डेटा सेव होकर रहने वाला है। ईच सेल कंटेन्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर which is known as the address of that cell। हर एक सेल को एक नंबर से जाना जाता है जिसको हम उसका सेल एड्रेस कहते हैं। A cell address is used to refer to a particular cell। The cell address is different from the contents of that cell। So when you want to store any information in a particular cell, it is necessary to specify the cell address and the information to be stored in it। Similarly, to read any information from a cell, it is necessary to specify the cell address। कोई भी डेटा जब हम सेव करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेल एड्रेस के ऊपर जाकर सेव होता है। तो जब हम वो डेटा रीड करना चाहते हैं, फिर से लेना चाहते हैं कंप्यूटर में से, रिट्रीव करना चाहते हैं, तब वही सेल एड्रेस से वो डेटा हमको मिलता है और हम उसको रीड कर सकते हैं। There are two kinds of primary memory। One is RAM and second one is ROM। The full form of RAM is Random Access Memory। RAM का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। रैम के अंदर जो डेटा सेव रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के स्वरूप में डेटा स्टोर होता है। Hence, anything stored in RAM will remain stored there only as long as electronic power is supplied to the computer। तो रैम के अंदर कोई भी डेटा तब तक सेव रह सकता है जब तक कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई मिलता है, यानी कि लाइट ऑन है तब तक। जैसे ही लाइट कट ऑफ हो गई पूरा डेटा लॉस हो जाता है। इफ़ देयर इज़ एन इंटरप्शन in the power supply or if you switch off the computer, you will lose all the information stored in RAM। Hence, RAM of a computer is a temporary memory or volatile memory। तो इस तरीके से RAM जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पर एक शब्द आपको नया सुनने को मिल रहा होगा, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है कभी कभी घटना कभी बढ़ना। वो आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा आपके मोबाइल में, जब आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑन करके रखी होगी, फिर आपने ऑफ कर दी होगी भले, लेकिन जब आपके मोबाइल में लेफ़्ट साइड नीचे की ओर जो 3 लाइन होती है उसको आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैम के अंदर अभी भी कितनी सारी एप्लीकेशंस अभी भी सेव करके रही पड़ी है। तो आप जैसे ही वो क्लियर करेंगे
तो वो रैम के अंदर जो उसकी जो प्लेस होगी वो बढ़ जाएगी। रैम की जो समझ लीजिए कि पूरी रैम जो है 2 GB की है आपके मोबाइल के अंदर। अभी आपने इतनी सारी एप्लीकेशन खोल के रखी है कि वो 2 GB में से 1 GB को कंज्यूम कर रहा है, वो उसको यूज़ कर रहा है। जैसे ही सारी एप्लीकेशन आप रैम में से निकाल देंगे, फिर से वो 2 GB आपको फ्री यूजेज बताएगा। समझे आप? तो ये जो घटना होती है उसको वोलेटालिटी बोलते हैं। उसके ऊपर से वर्ड लिया गया है यहाँ पर वोलेटाइल, यानी कि कभी कभी घटना, कभी कभी बढ़ जाना। तो रैम के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस रन हो रही होगी, तब 2 GB रैम में से 1 GB मेमोरी फ्री बताएगी आपको, और सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो आप बंद कर देंगे, रैम में से निकाल देंगे, तो आपको वो 2 GB फ्री रैम ऐसा आपको मैसेज दिखाएगी। तो इसको वोलेटाइल बोलते हैं। इन रैम इंफॉर्मेशन is stored using bits. A bit is a binary digit which can be either 0 or 1. A group of 8 bits is called byte. रैम के अंदर बीट के स्वरूप में डेटा स्टोर होता है, और अ बीट इज़ अ बाइनरी डिजिट। जो बीट है वो बाइनरी डिजिट है, द्विअंक की संख्या है। या तो वो 0 हो सकती है या 1 नंबर हो सकता है, दूसरा कोई भी नंबर इसमें नहीं आता है। A group of 8 bits is called byte, और 8 बीट को मिलाकर 1 बाइट बनता है। सेकंड पॉइंट इज ROM, ROM। द फुल फॉर्म ऑफ ROM इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ऑल द प्रोग्राम्स एंड द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू रन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन रोम। सारे प्रोग्राम और कंप्यूटर को चलाने में जो सॉफ्टवेयर हेल्पफुल है वो रोम के अंदर सेव किया हुआ होता है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड, और रोम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और इट इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं फिर भी वो डेटा इरेज नहीं होता है। हेंस रोम ऑफ कंप्यूटर इज़ अ परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इस तरीके से रोम को परमानेंट या नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एज यू नो, रैम इज टेम्परेरी मेमोरी विच इज़ लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। आप जानते हैं कि रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, स्विच ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर की तो पूरा डेटा उसमें से चला जाता है। नाउ देयर में बी सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू स्टोर परमानेंटली। सच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको आप परमानेंटली रखना चाहेंगे, ठीक है, तो वो आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी कैन बी इरेस्ड और सम न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी और रिटन ऑन इट। So this is all for today. In next video we will learn hard disk and CD. Till then, goodbye.